Very good morning, children. Now, uniformly accelerated motion equations, all the three equations, their derivations we've done. Now, the application part, the numerical part where you will face problem. So, see, if a train is starting, okay, from rest, attains a velocity of 72 km per hour in 5 minutes. So, starting from rest, so what you will write, your initial u is equal to 0. This is example 8.5. Okay, we'll start. For those who do not understand, for them I'm doing it. Attains a velocity. So finally it attains velocity of 72 km per hour. In how much time? In 5 minutes. So this is not in SI unit. So you have to change it into seconds. So into 60 seconds. है ना, क्योंकि 1 minute has 60 seconds. So this will become 300 seconds. And here 72 kilometers. That means kilo means 1000. तो ये 1000 मीटर हो गया अपॉन आवर्स. 1 hour मतलब 3600 seconds. So now this is in meter per second. Okay, so final velocity, initial velocity is given. They are asking you to find acceleration. So you have to find acceleration. Acceleration is equal to v minus u by t from the first equation of motion. So u is 0, so it will be v by t. So v is 72,000 upon 3600 into 1 upon टाइम क्या है 300 सेकेंड्स. ठीक है, तो ये आ जाएगा मीटर per second square. So now this 2 zeros will cancel and 3 2s are 6, 3 4s are 320, 1 0 also cancel, and now when you'll divide you'll get answer 24/360 meter per second square. बाकी का complete calculation तुमको खुद करना पड़ेगा. Second, the distance traveled by train for attaining this velocity. How much distance to reach this final velocity, how much distance was traveled by the train? So your distance s is equal to ut plus half at square. This formula you can use. You can also use v square is equal to u square plus 2as. Time पता है, acceleration पता है, सब कुछ पता है. यहाँ पे you substitute you'll get. Otherwise you use this formula. इसमें भी initially it is 0, v square, तो ये स्क्वायर करके निकाल लोगे. यहाँ पे ये कोई दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर लो, आ जाएगा. प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन अभी कितना है 24/360 इंटू टी स्क्वायर मतलब 300 इंटू 300. ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो तुमको मिलेगा 12 जा 3 10 जा 3 1 जा 3 2 जा कैंसिल. सो 3 किलोमीटर्स है ना, 3 के आगे 300 और ये 0, तो 3 किलोमीटर्स डिस्टेंस ट्रैवल. ठीक है, ये समझ में आ. Now see example 8.6. Car accelerates uniformly from, so this is 18 km per hour. This is your initial speed to this is final speed in 5 seconds. Time is given. Acceleration and distance covered you have to find. Okay, again same kind of a question, but things are given different. Now here, okay, focus on the. It's taking time to focus ना. हो रहा है यहाँ पे. हाँ देखो, थोड़ा टाइम लेता है. सो u इज़ इक्वल टू इनिशियल स्पीड इज़ 18 किलोमीटर पर आवर है ना, और फाइनल स्पीड कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर. तो ये 18 का क्या हो जाएगा 18 इंटू 1000, ये 1000/3600, और ये हो जाएगा 36 इंटू 1000 अपॉन 3600. इसको सॉल्व कर लो. ठीक है, तो ये यू विल गेट 180/36 एंड हियर यू विल गेट 360/36. ठीक है, तो ये तो हो गया 10 किलोमीटर पर आवर. और ये क्या हो गया 18 के टेबल में 36 आता है क्या? ओके, नहीं तो 3 से कर लो. 3 1 3 2 3 9 3 6 0 देन 6 10 6 2 सो यू विल गेट 5 मीटर पर सेकेंड. दिस इज मीटर पर सेकेंड. हमने मीटर पर सेकेंड के लिए किया है. ठीक, 5 आया, दूसरे का 10 आया फाइनल. और ये सब कुछ टाइम कितने में हो रहा है 5 सेकेंड्स में हो रहा है. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 सेकेंड्स दिया है. सो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू v माइनस u बाई टी. योर फाइनल वेलोसिटी इज 10, इनिशियल वेलोसिटी इज 5 अपॉन टाइम इज 5. सो 5/5 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, और डिस्टेंस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. या तो ये कर लो, या फिर v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. इस बार हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं. v स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 2. एक्सेलरेशन अभी हमें +1 आया था इंटू एस. सो यू विल गेट 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 2s.
ये तो जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे, या तो 100 माइनस 25 या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। तो 10 माइनस 5 इंटू 10 प्लस 5 मैं वो कर रही हूँ, तुम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाएगा आंसर। सो दिस विल बी 5 इन 10 plus 5, okay. 15 into 5 is equal to 2s. So your s will be 15 into 5 by 2. Okay. So this will be 25 to 75 by 2 second meters. Distance है ना meters. Okay. Now moving to next example. Here the brakes applied to a car produces an acceleration of 6 meter per second square. So acceleration is given and brakes are applied. So when you apply brake, the acceleration which we get is actually deceleration. ठीक है, तो एक्सेलरेशन को हम -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। दिया भी हुआ है, जब भी एक्सेलरेशन ऑपोजिट टू मोशन होता है तो उसको नेगेटिव लेना पड़ता है, वो डी एक्सेलरेट होता है। इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड्स टू स्टॉप, टाइम दिया हुआ है टू स्टॉप, तो मतलब फाइनल वेलोसिटी हो गई 0 आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। Calculate the distance it travels during the time. Okay, so what is given to you, that car produces acceleration which is -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ऑपोजिट टू मोशन है या फिर ब्रेक्स लग रहा है तो डी एक्सेलरेशन, इसलिए माइनस लेना पड़ेगा। ओके, कार टेक्स 2 सेकेंड्स, तो टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड्स एंड एप्लीकेशन कैलकुलेट द डिस्टेंस, so you have to find s for the car to stop. So final velocity is 0, initial velocity is not given to us. Okay, so what you will do then if initial velocity is not given? So we know that v is equal to u plus at. तो इससे v पता है, a पता है, t पता है, u निकाल सकते हैं। और s, ठीक है, तो पहले u निकालना पड़ेगा, क्योंकि s के लिए विच एवर फॉर्मूला यू यूज़, वेदर यू यूज़ दिस फॉर्मूला और यू यूज़ दैट फॉर्मूला, यू नीड टू नो व्हाट इज़ द इनिशियल वेलोसिटी। इसमें भी u आ रहा है, इसमें भी u आ रहा है, तो u निकालना है। सो योर दिस 0 इज इक्वल टू u into plus -6 into 2, so you will get u is equal to 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो u आ गया। अब ये s निकालने के लिए या तो तुम ut प्लस हाफ एटी, कोई भी फॉर्मूला एक लगा लो, हाफ एटी स्क्वायर लगा लेते हैं। सो 12 इंटू 2 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन इज -6 इंटू टी स्क्वायर विल बी 2 स्क्वायर मतलब 4, सो दिस विल बी 24 माइनस 6 इंटू 2, क्योंकि ये 1 ज़ा ये 2 ज़ा है ना, तो -6 into 2, 24 minus 12, which is 12 meter. Okay, 12 meters. Okay, so examples are over. Now after example is in-text question. A bus starting from rest moves with uniform acceleration. Starting from rest, u equal to 0, moves with uniform acceleration of this much meter. Okay, in for 2 minutes. The time is given. Find speed acquired and the distance traveled. So what all things are given in question number 1? You're starting from rest, so u is equal to 0. Acceleration is given 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, स्पीड अप हो रहा है ना, तो प्लस देन 2 t is 2 minutes, 2 minutes मतलब 2 into 1 minute is 60 seconds to 2 into 60, that means that much seconds. Find speed v acquired and the distance travel s. ठीक है, v और s निकालना है, तो v is equal to u plus at, सिंपली u दिया, a दिया, u 0 है, a 0.1 है, इंटू t क्या है 2 into 60 है, तो ये हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। ओके, 12 मीटर पर सेकेंड। एंड व्हाट अबाउट s? सो s के लिए तो तुम्हें बताया ही है, कोई भी फॉर्मूला सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन यू कैन यूज़। तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सो यू इज़ 0, सो दिस इज़ 0 फर्स्ट टर्म, प्लस हाफ ए 0.1 इंटू टी स्क्वायर इज़ 2 इंटू 60 का स्क्वायर है, तो 2 इंटू 60 दोबारा कर लो, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो ये इंटू दिस विल बिकम 6 इंटू 120, सो 0 6 2 12 1 6 720 मीटर। ओके, 720 मीटर विल बी द डिस्टेंस ट्रैवल। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इसकी इनिशियल स्पीड दी हुई है 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अप्लाइज ब्रेक, अगेन ब्रेक वाला क्वेश्चन है, इसलिए एक्सेलरेशन देखो क्वेश्चन में भी दिया हुआ है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नेगेटिव के साथ। फाइंड द हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। इट इज़ ब्रॉट टू रेस्ट, तो फाइनल वेलोसिटी इज 0। ओके, फाइनल वेलोसिटी इज 0, हाउ फार इट गोज मतलब एस निकालना। सो क्वेश्चन में तुम्हें यू दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, वी जब तक 0 हो तब तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो अब इसको तो पहले तुम 90 को मीटर्स में चेंज करो, सो 1000 अपॉन 3600। ओके,
दिस इज़ ऑल्सो 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है. 5/18, दिस 1000/36 इज एक्चुअली 5/80. तो मैं ऐसे लिखती हूँ, तो 5/18 भी लिख सकती हूँ. ओके फाइन. सो एस जो है ये तो हो गया मीटर पर सेकेंड. एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, या फिर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS. तो मैं ये वाला फॉर्मूला करूँ यूज़ कि यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, टी तो दिया ही नहीं हुआ है, तो यही फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा. 0 इज इक्वल टू दिस यू स्क्वायर देख लो कितना आता है. ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया. 9 10 9 4 100/4, दिस इज़ 25 मीटर पर सेकेंड. ओके, तो ये 25 का स्क्वायर प्लस 2 ए इज़ माइनस 0.5 इंटू एस. ये नेगेटिव टर्म है, इसको इधर ले जाके पॉजिटिव कर देंगे. सो 2 इंटू 0.5 पॉजिटिव हो गया इंटू एस इज इक्वल टू 25 स्क्वायर. सो एस इज इक्वल टू 25 स्क्वायर इज 625 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.5. ठीक है, तो अब 0.5 जो दिस इज़ 1, so you will get 625 meter. Okay, he traveled. Then third question, if you see, a trolley while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second. So acceleration is 2 centimeter per second. It is going down a plane. नीचे की तरफ ऐसे लुढ़क रहा है तो स्पीड बढ़ेगी ना, इसलिए acceleration जो है वो तुमको पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव नहीं. अगर प्लेन के ऊपर जा रही है तो नेगेटिव लोगे क्योंकि डी एक्सेलरेट होगा, लेकिन ये प्लेन के नीचे की तरफ जा रही है सो इट स्पीड विल इंक्रीज, तो ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव है. व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट. ठीक है, तो ये दिया तुमको 3 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट. सो यू इज इक्वल टू 0, इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0, इट इज़ एक्सेलरेटिंग विथ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तब ये ऐसा यूनिट नहीं होती है सेंटीमीटर, तो इसको कैसे करेंगे चेंज टू सेंटी, मतलब 10⁻² मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, याद रखना सेंटी मतलब 10⁻² मीटर, सेंटीमीटर. किलोमीटर इज 10⁻³ होता है वो मीटर, ये 10⁻² होता है. मिली 10⁻³ होता है. ठीक है, तो ये दिया हुआ है. अब तुमको क्या निकालना है, हाउ फार या डिस्टेंस नहीं, क्या दिया, व्हाट विल बी द वेलोसिटी निकालना है, वी फाइनल वेलोसिटी. ठीक है, आफ्टर 3 सेकेंड्स. सो वी इज इक्वल टू यू प्लस AT, जस्ट यू 0 दिया हुआ है प्लस ए दिया हुआ है. 2 इंटू 10⁻² इंटू टी करोगे 3, तो 6 इंटू 10⁻² सेकेंड्स मीटर पर सेकेंड. ठीक है, 6 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड, ये तो होता है सेंटी, तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो उसकी स्पीड हो जाएगी 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड. Now you see next fourth question, a car has a uniform acceleration of a is equal to 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है. ठीक है, what distance will it cover in 10 seconds after the start? Okay, so your car is there after it starts, so u is equal, initially it was at 0, you are accelerating it with acceleration 4 meter per second square. What distance will it cover? So you have to find s. In time is given 10 seconds. ओके, आफ्टर द स्टार्ट. सो ये ए दिया हुआ यू 0 है, एस फाइंड करना है, टी दिया है. एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर. एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर. तो यू 0 है प्लस हाफ, ए इज़ 4 इंटू 10 इंटू 10, ये 2 हो गया, तो 200 मीटर्स. ओके, 200 मीटर्स. अब अगर तुम ये क्वेश्चन नंबर 5 देखो, स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड. सो इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है. तो ये देखो, अगर मैं ड्रॉ करूँ, नीचे ग्राउंड पे ये स्टोन है, इसको ऊपर फेंका है तुमने विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है ना. देन इट एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये क्वेश्चन दिया हुआ है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो जब भी हम किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं वो धीरे धीरे ऊपर जाके रुक के वापस आती है, मतलब ऊपर जाते वक्त उसकी स्पीड कम हो रही है, डी एक्सेलरेशन हो रहा है. सो इसकी एक्सेलरेशन जो होगी वो नेगेटिव होगी, और कितनी होगी वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 10. ठीक है, 10. तो क्योंकि वर्टिकल मोशन है तो जनरली ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर हम 10 भी ले लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली. तो क्वेश्चन में 10 है इसलिए तुम 10 ही लोगे. इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन व्हाट विल बी द हाइट अटेन बाय. सो देखो, स्पीड इसकी वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में थी, लेकिन एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए नेगेटिव होगा, तभी तो ये धीरे धीरे जाके स्टॉप हो जाती है. आगे का क्वेश्चन क्या है, आगे का क्वेश्चन है व्हाट विल बी द हाइट अटेन बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर. सो हाउ मच हाइट, जो इसकी हाइट होगी मैक्सिमम, वहाँ जाके इसकी स्पीड हो जाएगी 0. तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने, एस ये निकालना है तुमको.
और कितने टाइम में ये वहाँ पहुँचा ये निकालना है, एस और टी। ठीक है, तो फिर बस एस क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन टी तो दिया ही नहीं, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम नहीं पता, सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो। वी क्या है, वी है 0, यू क्या है 5, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 2 इंटू -10 इंटू एस। ठीक है, सो दिस इज नेगेटिव पार्ट, यू कैन टेक इट ऑन द अदर साइड, पॉजिटिव हो जाएगा। 20s इज इक्वल 25, सो s इज इक्वल टू 25/20 विच इज़ 5/4। ठीक है ना, 5/4 मीटर्स, यानी कि 1.25 मीटर्स, 1.25 मीटर्स तक ऊपर जाएगा। कितने टाइम में जाएगा, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फॉर्मूला यूज़ कर लो। v 0 है, u दिया हुआ है 5 प्लस -10 इंटू टी, सो योर t विल बी इक्वल टू 10t इज इक्वल टू 5, दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू 5/10, 0.5 seconds में, this much it will take 0.5 seconds to reach. Okay, that is it for the numerical in text question and the exercise given. बाकी बाद में करते हैं।